Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. I welcome you all in the AppSucks online support program. I'm your history teacher Sabah Farman, and this is our 9th week of OSP and first week of OSP round 2. Today we are going to discuss theme number 3, History of Indo-Pak. And the chapter name is The Foundation and Consolidation of the Mughal Empire. First of all, we will learn the objectives of this chapter. The first one is identify the factors which contributed to the conquest of India by Babur. Briefly describe Nasiruddin Humayun, his rule, exile and restoration. List the salient features of Suri's governance, communication, network and public welfare institutions. Describe Akbar's role in the expansion and consolidation of the Mughal Empire. Identify Akbar's reforms, Mansabdari system. Briefly explain Jahangir's and Noor Jahan as the cultural metaphors of the age, poetry, painting, music, clothing and culinary taste, etc. Briefly discuss Shah Jahan's reign at the golden age of the Mughals, and the last one is list the salient features of the Aurangzeb's reign. Next is picture. This is the picture of Badshahi Mosque, Lahore. Badshahi Mosque was built by Emperor Aurangzeb in 1671. The first topic of this chapter is Zahiruddin Muhammad Babur, 1526 to 1530. Zahiruddin Muhammad Babur was born in the royal family of Farghana, Uzbekistan on 14 February 1483. ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पैदा हुआ रॉयल फैमिली ऑफ फरगाना में उज़्बेकिस्तान में 14 फरवरी 1483 में. When his father उमर शेख मिर्ज़ा द अमीर ऑफ फरगाना डाइड इन 1494, जब उसके बाप उमर शेख मिर्ज़ा जो कि फरगाना का अमीर कहलाया जाता था, उसकी डेथ हुई 1494 में. बाबर असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 12. बाबर ने तख्त संभाला 12 साल की उम्र में. His father had spent his life to gain control of Samarkand and Babur continued the legacy. उसके बाप ने अपनी ज़िंदगी जो थी वो समरकंद को कंट्रोल करने में गुजारी और बाबर ने अपनी विरासत को जारी रखा. In 1497 he conquered the city but lost it again and reconquered it in 1501. 1497 में उसने इस सिटी को कंक्यर कर लिया, लेकिन उसे दोबारा से खो दिया और उसे दोबारा रिकंक्यर किया 1501 में. While he was busy in his expedition, some of his uncles and nobles of Farghana revolted against him and exiled him from his homeland. जब वो बिजी था अपनी जंगी मुहिमात में, तो उसके कुछ अंकल और कुछ नोबल्स जो थे फरगाना के, उसके खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी, बाबर के खिलाफ बगावत कर दी और उसको उसके होमलैंड, उसके फरगाना होमलैंड से उसको एग्जाइल कर दिया, यानी कि जिला वतन कर दिया. फॉर 3 years 3 साल तक ही वॉन्डर्ड इन सेंट्रल एशिया. वो सेंट्रल एशिया में घूमता फिरता रहा, ट्राइंग टू प्रूव हिज लीडरशिप क्वालिटीज़ टू हिज फॉलोअर्स, ताकि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को प्रूव कर सके. फाइनली ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ काबुल इन 1504. आखिरकार 1504 में उसने अपने आप को किंग ऑफ काबुल बना लिया. लेकिन फिर भी जो उसका ख्वाब था ना समरकंद कनकर करने का, वो जारी रहा. उसने बाबर kept on trying to conquer Samarkand and Farghana, but he failed and diverted his attention to other territories to expand his empire. बाबर जो था वो समरकंद और फरगाना को कनकर करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन जब वो नाकाम हुआ तो उसने अपनी जो अटेंशन थी डाइवर्टेड, मोड़ ली, अपनी अटेंशन जो थी वो दूसरे इलाकों की तरफ मोड़ ली ताकि वो वहाँ पर कब्जा करके अपने एम्पायर को बढ़ा सके. He was eager to conquer areas across the Hindu Kush, but the mountainous rough terrain, long distance and the weather uncertainties became major obstacles. वो बेचैन था, वो बेचैन था कि वो कनकर कर सके हिंदू कश के इलाकों को, लेकिन जो माउंटेनियस ये रफ टेरेन यानी कि बहुत पहाड़ी सिलसिला था, लॉन्ग डिस्टेंसेस थे और जो वेदर की बेयकीनी थी, अदम यकीनी थी, वो मेजर ऑब्स्टेकल्स यानी कि बहुत बड़ी रुकावट थे उसके लिए. ही रेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1519. उसने 1519 में पहली दफ़ा इंडिया पर रेड किया. Invitation to replace Ibrahim Lodi in 1521, the nobility of Delhi invited Babur to Delhi and
drove out Ibrahim Lodi, the ruler of Delhi, Daulat Khan, the governor of Lahore at that time, supported Babar's invasion. 1521 में जो दिल्ली के नोबल थे उन्होंने इनवाइट किया बाबर को दिल्ली में, और इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली का रूलर था उसको निकाल दिया गया, और जो दौलत खान था गवर्नर ऑफ लाहौर उस टाइम था, उसने सपोर्ट किया बाबर को. ही थॉट दैट आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी बाबर वुड रिटर्न टू काबुल लाइक मेनी अदर कंकरर्स, हाउएवर दैट डिड नॉट हैपन. उसने ये सोचा कि मतलब मैनी अदर कंकरर्स की तरह बाबर भी जो है वो उसको डिफीट करके इब्राहिम लोदी को वापस अपने मुल्क में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526. 5 years after his initial invitation to the subcontinent, Babur launched an attack on the Delhi Sultanate in April 1526. On the grounds of Panipat, Babur forces came across Ibrahim Lodi's huge army, which included herds of elephants. 1526 में अप्रैल में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की बड़ी फ़ौजें जो थी वो आमने सामने हुई, और इब्राहिम लोदी की जो फ़ौज थी उसमें हर्ड्स ऑफ एलिफेंट्स यानी कि हाथियों के रेवड़ थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े हाथी वो लोग लेकर आए हुए थे, जंगी हाथी जो थे अपने साथ जंग में लेकर आए हुए थे वो लोग. बाबर्स इवेंशियल सक्सेस वाज मोस्टली ड्यू टू वेल ट्रेन्ड आर्टिलरी फोर्स एंड द यूज़ ऑफ गन पाउडर इन वेपन्स. अब ये आर्टिलरी फोर्स क्या है, आर्टिलरी फोर्स क्या है? ये फोर्स वो है जो कि असले का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, और गन पाउडर का यूज़ किया बाबर ने अपने वेपन्स में. इसकी वजह से बाबर को बहुत बड़ी सक्सेस हुई. दिस बैटल इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का नाम दिया जाता है. इट ब्राउट अबाउट द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल डायनेस्टी. इसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ और मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी गई. Now we learn about the next topic, and the next topic is challenges for Babur. अब ज़ाहिर सी बात है जब एक आप एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर कायम कर लेते हैं तो आपके लिए चैलेंजेस भी उतने ही बड़े बड़े होते हैं. तो आफ्टर गेनिंग कंट्रोल ओवर द दिल्ली सल्तनत बाबर हैड टू फेस टू चैलेंजेस उसको सामना करना पड़ा. फर्स्टली हिज नोबल्स डिड नॉट लाइक द एनवायरनमेंट एंड वांटेड टू गो बैक देयर होम टाउन. पहली जो उसकी जो चैलेंज था उसको ये था कि उसके जो नोबल्स थे, जो उसके कोर्ट नोबल्स थे, वो वहाँ पर रहना नहीं चाहते थे और अपने होम टाउन वापस जाना चाहते थे. इन्वायरमेंट नहीं पसंद करते थे इंडिया की वो. सेकेंडली द राजपूत वर गैदरिंग अगेंस्ट द मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ राणा संगा, द रूलर ऑफ मेवाड़. तो जो रूलर ऑफ मेवाड़ था ना, राणा संगा, उसकी लीडरशिप में जो राजपूत से वो बार बार अटैक करने की कोशिश करते थे मुगल्स के ऊपर. और जो लोदी, इब्राहिम लोदी को जिसको शिकस्त दी थी बाबर ने और दिल्ली सल्तनत का खात्मा किया था, वो भी ग्रुपिंग में दोबारा से जो है वो उन्होंने री ग्रुपिंग कर ली थी और वो अपनी खोई हुई पावर को वापस हासिल करना चाहते थे. बाबर केम across Rana Singha in the Battle of Khanwa and succeeded by using his superior military tactics. बाबर ने राणा संगा के खिलाफ जंग लड़ी, बैटल ऑफ खानवा जिसे कहा जाता है, और वहाँ पर उसने सक्सेस हासिल की. किसकी वजह से? मिलिट्री टैक्टिक्स, अपनी सुपीरियर जंगी चालों की वजह से. बाबर compiled his memoirs in his autobiography called Tazke Babari, in which he recorded his experiences of invading different regions and the memoirs of his hometown Fargana. आप देखें कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को डायरी लिखने की आदत होगी, आपके बड़ों को भी होगी. तो इसी तरीके से बाबर जो था उसने अपनी मेमोराइज यानी अपनी यादों को एक ऑटोबायोग्राफी के तौर पर एक अपनी बुक कंपाइल की जिसको कहा जाता था तज़्के बाबरी, जिसमें उसने अपनी एक्सपीरियंसेस शो किए. उसने अपनी जो है उसने इन्वेड किया जो डिफरेंट रीजन्स पर. उसके अलावा उसकी होम टाउन फरगाना की यादें जो थी वो सारी उसने तज़्के बाबरी में लिखवाई. इन द ऑटम ऑफ 1530 के ख़ज़ा में बाबर बहुत सख्त बीमार हो गया, फेल इल बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग टाइनिंग कैंपेन्स एंड द इंडियन क्लाइमेट जो था वो उसको सूट नहीं किया, डैट्स वाई वो बीमार हो गया. और 26 दिसंबर 1530 में बाबर डाइड एट द एज ऑफ 47 एंड वाज बरीड इन द बिलवड काबुल अफ़गानिस्तान. और 47 ईयर्स की एज में वो डेथ हुई उसकी, और उसको काबुल उसके प्यारे शहर काबुल अफ़गानिस्तान में दफन किया गया. The next topic is Babur's son Nasiruddin Muhammad Humayun. Humayun was the second Mughal emperor. वो दूसरा मुगल एम्पर था. He was the son of the successor of Babur. वो बाबर का बेटा था अकबर. After Babur's death, Humayun followed his father's advice. He was kind to his brothers and appointed them to high positions. उसने अपने बाप की नसीहत को बरकरार रखा और अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक किया और उन्हें हाई पोजीशंस दी. But in return they betrayed him. उसे धोखा दिया गया.
उस रिटर्न में इन द फर्स्ट 10 years ऑफ हिज रूल, पहले 10 सालों में उसकी हुकूमत के द मेन चैलेंजेस ही फेस्ड वर पोज्ड बाय द अफगान नोबल्स, द राजपूत एंड इंटरनल कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। जो अंदर इंटरनल कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि तनाज़ात थे उसके खिलाफ, उसके अलावा अफगान नोबल्स जो थे वो उसको बहुत तंग कर रहे थे, और राजपूत जो थे वो उसके लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज थे। Humayun's exile and restoration. Humayun realized that Sher Shah Suri was the greatest emerging threat to the Mughal Empire. Emerging threat, एक उभरता हुआ खतरा था शेर शाह सूरी, जो कि एक अफगान लीडर था। शेर शाह सूरी जो था वो एक उभरता हुआ खतरा था मुगल्स के लिए। तो सबड्यू शेर शाह सूरी powers, Humayun marched towards बिहार एंड बंगाल विद अ ह्यूज आर्मी इन 1538। इस शेर शाह सूरी को महकूम करने के लिए, उसकी पावर को ख़त्म करने के लिए हुमायूं ने मार्च किया बिहार और बंगाल की तरफ अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ इन 1538 में। शेर शाह सूरी बीइंग अ वाइस जनरल वेरी टेक्टफुली डिफीटेड द मुगल एम्परर। जो शेर शाह सूरी था वो एक बहुत अक्लमंद जनरल था और उसने बहुत जंगी चालों से अपनी मुगल एम्परर को शिकस्त दी। इन मई 1540 हुमायूं मेड अनदर अटैम्प्ट टू रिकवर हिज फॉर्च्यून इन खनूज। 1540 में उसने एक और जो है वो अपनी एक और अटैम्प्ट किया उस शेर शाह सूरी उसके ऊपर, ताकि वो अपनी खोई हुई जो खनूज की दौलत है वो वापस हासिल करते, बट वाज डिफीटेड अगेन। लेकिन उसे दोबारा शिकस्त हुई। ही वाज कंपेल्ड, उसे मजबूर कर दिया गया टू फ्ली इंडिया, ताकि वो इंडिया की तरफ भाग जाए। और उसने वहाँ शाह थामस जो कि ईरान का शाह था, उससे 1544 में उसने उसको पनाह दी। वो उसने काबल को और कंधार को जो है वो हेल्प ऑफ किंग ऑफ पर्शिया की मदद से दोबारा से कैप्चर किया, और मुगल थ्रोन एट दिल्ली एंड आगरा आफ्टर 15 years, 15 साल तक उसने मुगल थ्रोन वहाँ पे संभाला। एज ही वॉज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, ही एस्टैब्लिश एन ऑब्जर्वेटरी ऑन द रूफ टॉप of study the stars. In 1556 he fell from the observatory stairs and received fatal injuries and died. एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट लेता था, और उसने बाकायदा जो है वो एक ऑब्जर्वेटरी जो है वो कायम किया हुआ था, रूफ टॉप पे बनाया हुआ था, और उसी ऑब्जर्वेटरी से वो स्टेयर से उतर रहा था, और स्टेयर से उतरते हुए उसका पाँव फिसला, और जिसकी वजह से उसको फैटल इंजरीज हुई और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ये पिक्चर में देखें, ऑब्जर्वेटरी है जो दिल्ली में, जहाँ पे हुमायूं की स्टेयर से डेथ हुई थी, ये अभी तक मौजूद है। शेर शाह सूरी एंड हिज डायनेस्टी. शेर शाह सूरी रूल स्पैन्स ओवर 5 years फ्रॉम 1540 to 1545. उसने 5 साल तक हुकूमत की. द रिफॉर्म ही इंट्रोड्यूस इन मिलिट्री एंड सिविल फील्ड्स, notably in revenue administration, are incredible. During his short reign, he constructed a road link from Peshawar to Bengal that is known as the Grand Trunk Road. It was 1500 miles long. उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की, नोटेबल तरक्की की सिविल फील्ड्स में, मिलिट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा उसने काबिल यकीन जो है वो काम किया। और उसके अलावा उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, जो कि पेशावर से जो कि लिंक करता था पेशावर टू बंगाल में। ही बिल्ट रेस्ट हाउसेज एट डिस्टेंस ऑफ एवरी 10 miles. उसने 10 मील के फासले पर रेस्ट हाउसेज बनाए, जहाँ बेड थे, वाटर रिसोर्सेज थे, और हॉर्सेस के लिए ग्रेन था। Trees were planted along the route for the travelers to rest. Trees plant किए गए उस पूरे रोड के ऊपर. He established a postal service in the region and set up courts throughout the kingdom to provide justice to Muslim and Hindus. उसके अलावा उसने कोर्ट्स कायम किए जहाँ पर लॉज जो थे वो मुस्लिम और हिंदूज़ के लिए एक जस्टिस प्रोवाइड किया जाता था वहाँ पर लोगों को. ही डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड अपॉइंटेड अकाउंटेबल एंड ऑनेस्ट ऑफिशियल्स टू रन दैम. उसने अपने किंगडम को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, और वहाँ पर बहुत ईमानदार जो ऑफिसर्स थे वो रखे ताकि वो उसको संभाल सकें. आफ्टर हिज डेथ इन 1545, उसके 5 साल दौरे हुकूमत के बाद 1545 में जब उसकी डेथ हुई, सक्सेसर्स कुड नॉट होल्ड द एम्पायर, हैंस द सूरीज एम्पायर कोलैप्स्ड. उसके जो सक्सेसर्स थे वो उसके एम्पायर को नहीं संभाल सके, और उसका शेर शाह सूरी का जो एम्पायर था वो कोलैप्स यानी कि ख़त्म हो गया. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रोहतास किला नियर झेलम. ये बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होगी. झेलम के पास ये रोहतास किला है, किला रोहतास के नाम से, जो कि शेर शाह सूरी ने बिल्ड करवाया था, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर अब जाना जाता है पाकिस्तान में. I hope you have understood everything. Any question about this lecture, you can ask me on every day 8 to 2 p.m. Thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz.